Good morning, students. So, I am here with another uh, lecture on atomic structure, that is of your chapter number 2. So, in this lecture, we are going to discuss something about Planck's quantum theory, photoelectric effect, and the black body radiations. What are these main topics? So, basically, these are your physics topics, but yes, they are related to your chemistry also. We will study them one by one. So, till now we have studied regarding the uh, wave nature of the light. We said that light has a wave nature. Okay, so जैसे कि electromagnetic radiations have wave nature. So उसके बाद some scientists studying that at the same time they are studying regarding the particle nature of the waves. So what are the observations or what are the conclusions that leads to these scientists to think that a wave has a particle nature also. So what is the Planck's quantum theory? Hot according to him, hot objects emit electromagnetic radiations over a wide range of wavelengths. जो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो ईएम रेडिएशंस हैं उसमें से जो है इमिट आउट होती है एंड हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. At high temperature, an appreciable proportion of radiation is in the visible region of the spectrum. जितना हाई हम टेम्परेचर को करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो निकलेंगी उनका जो स्पेक्ट्रम होगा उन ईएम वेव्स का, वो विजिबल रीजन के अंडर होगा. As the temperature is raised, a higher portion of short wavelength is generated. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पहले रेड देन इट इज ब्लू. फॉर एग्जाम्पल, when an iron rod is heated in a furnace, अगर हम किसी आयरन रोड को हीट करते हैं किसी फर्नेस में, तो फर्स्टली वो कैसी हो जाती है, रेड होती है. फिर हम उसको प्रोग्रेसिवली जो है और हीट करी जा रहे हैं और हीट करी जा रहे हैं, देन इट बिकम्स ब्लू. सो दिस इज हीटेड फर्दर, द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स वाइट. फर्दर उसको हम हीट करते जा रहे हैं तो उसकी रेडिएशन जो है वाइट होंगी एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के रेड रेडिएशन जो है is most intense at a particular temperature and the blue radiations is more intense at another temperature. कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है कभी हमें ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है, कभी ब्लू दिख रहा है, कभी वाइट दिख रहा है. सो दिस ऑल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. So how जैसे जैसे we are increasing the temperature, the color of the object is going to be changed. Okay. Now, to understand this, okay, let's start now what this theory is actually. So before this, Max said he understood that okay, light has a wave nature, कि ये waves हैं, जैसे कि UV rays हैं, infrared हैं, ये भी waves हैं. But he said that radiations are made up of very tiny packets of energy. He said radiations are made up of tiny packets of energy. और उन packets को उन्होंने क्या कहा? He said those packets as photons or quanta. He said those packets of energy as a photons or quanta. Now, so he just talking about the particle nature of wave, and these particles have fixed energy. और उन्होंने ये भी कहा ये जो photons हैं, ये जो photons हैं जिनको हम particle consider कर रहे हैं, according to him has a fixed amount of energy. So he said that it is equal to E is equal to H F or H nu. This is nu is where nu is the frequency and H is the Planck's constant. So he said the amount of energy associated with the quantum of radiation is directly proportional to the frequency of the radiation. That is, energy of that quanta is fixed if then that energy जो fixed है वो किसके equal होगी? It is proportional to the frequency nu, and that is equal to H nu. Now H is here Planck's constant and its value is 6.6 26 into 10 raised to power minus 34 joule second. This is the value of the Planck's constant. Now, अब आपको ये भी पता है बच्चे कि that
this frequency mu is equal to velocity of light by lambda. ये हमने पहले भी I think in last lecture we have discussed this, that is frequency is equal to velocity of light divided by wavelength. So when we put this equation over here, it will be like this, that energy is equal to h into c by lambda. So thus the greater the wavelength of the radiation, lesser will be the energy. जितनी ज़्यादा जो है आपकी wavelength होगी, energy जो है उतनी ही कम होगी. और यहाँ से यू कैन इन्फर जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगी. सो दिस इज अ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिलेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी, एंड जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था. ठीक है, तो जो हमारी वेव्स होती हैं, आपको पता है वेव्स उनको तीन करेक्टर जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तीन टर्म्स के ऊपर, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. और वो कैसे रिलेटेड है मैंने आपको बता दिया, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज वी, नॉट नाउ म्यू, वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू frequency, that mu and lambda, that is speed of the wave, or speed of wave is equal to the product of frequency into wavelength. So it is your frequency and this is your wavelength and this is speed of the wave. So v is equal to mu into lambda. This is the relation. These relations are very useful while we are solving the numerical problems here. So in this way, इससे पहले in last lecture we have discussed regarding the wave nature of the light. So अब हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं particle nature of the waves. तो ये भी prove हो गया कि waves जो हैं electromagnetic wave जो हैं they are behaving as a wave as well as particle. So इस तरह से ये find हुआ that light has a dual nature or dual character, कि ये as a wave भी behave कर रही है और it is behaving as a particle also. Next is particle nature of electromagnetic radiation, that is Planck's quantum theory. अभी हमने discuss किया है. So wave theory of radiation can't explain the phenomenon of photoelectric effect and black body radiation. अब पार्टिकल नेचर हमें कहाँ से स्टडी करने की क्या सूझी साइंटिस्ट को कि नहीं, वी हैव टू स्टडी दिस पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव्स. सो ये जो वेव नेचर था रेडिएशंस का, जिसको अभी तक साइंटिस्ट जो थे कंसीडर कर रहे थे कि नहीं वेव्स का एक जो है जो हमारी ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनका सिर्फ वेव नेचर है. सो दीज वेव्स आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, इन दोनों ही थ्योरीज ने हमें ये मानने पे हमें फोर्स किया कि यस ये जो हमारी लाइट है इट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल ऑल्सो. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, जैसे कि हमने फर्स्टली आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड before discussing this I just want to discuss some points here belonging to spectrum, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. स्पेक्ट्रम हमारा बच्चे, तो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. ठीक है, अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम, उसके दो पार्ट्स हैं. द वन इज विजिबल रीजन, मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, ह्यूमन आई. ठीक है, द वन इज विजिबल रीजन और द अदर वन इज नॉट विजिबल. ओके, तो विजिबल रीजन मीन्स जो ऐसे रेडिएशंस का रीजन जिसको हम देख सकते हैं. ओके, सो इस विजिबल रीजन के अंडर जो है हमारा आता है, ये किसके अंदर है, इसके फ्रीक्वेंसी जो किसके, इसके इस तरफ को होता है IR रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशंस का, और इस तरफ को होता है UV रेडिएशंस. ये हम पढ़ चुके हैं. और आई थिंक इट इज नियर अबाउट 400 एंगस्ट्रॉम्स टू 700 एंगस्ट्रॉम्स. ओके, ये इसका रीजन है, विजिबल रीजन है हमारा. विजिबल रीजन के इस तरफ लेफ्ट साइड को है इंफ्रारेड रेडिएशंस का रीजन, और राइट साइड को है UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का रीजन है. नाउ
अब इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स को स्टडी करना है. लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर हियर. इफ कंसीडर वी हैव अ बॉडी हियर, एनी बॉडी, ठीक है, हमारे पास कोई भी यहाँ पे बॉडी है, उसके ऊपर हम रेडिएशंस डाल रहे हैं, वाइट लाइट, ठीक है, इसमें विवग्यो और सारे कलर आते हैं वाइट लाइट में, ठीक है. तो हमने सारे जैसे हमारा विवग्यो के कलर्स हैं. द फर्स्ट वन इज वायलेट, देन इंडिगो, then we have blue, after that it is green, then yellow, then orange and red. I think these 7 colors, 1 2 3 4 5 6 7, yes. सो ये वाली जो रेडिएशन हैं जब हमने इस बॉडी में से पास की तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ रेडिएशन इनमें से क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब, क्या हो जाएंगी, सम रेडिएशंस. 3 हमारे पास इसमें कैटेगरीज आएंगी. सो फर्स्ट जो होगा दैट दे मे बी एब्जॉर्ब, कि कुछ रेडिएशन जो हैं वो इस केस में एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी बाय द बॉडी. और सेकंड केस में यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक और है कि ठीक है उन्होंने कुछ जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, अब हो सकता है वो कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट भी करे. दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. Okay, and third possibility is that it transmit some of the radiations. It transmit some of the radiations. So these are the 3 possibilities here. नो इस फर्स्टली क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन जो है इस बॉडी में गए हैं और इसने सारे ही रेडिएशंस या कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है. अब कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक किया और कुछ को तो ट्रांसमिट भी कर दिया. अब ये जो रिफ्लेक्शन वाली बात है यहाँ पे हमें इसको पकड़ना है. रिफ्लेक्शन का मीन्स है कि जिस रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस रेडिएशन को ही हम देख पाएंगे. मीन्स दिस रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी बॉडी का कलर, तो जो बॉडी, ये वाली बॉडी अगर जिस रेडिएशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है हम उसके कलर को उसकी हेल्प से देख पाएंगे. सो दिस इज द ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये तो सबको आपको पता ही है, नथिंग इज न्यू आई थिंक. सो लेट अस कंसीडर इफ वी हैव दिस रेड बॉडी हियर. हमारे पास ये कोई रेड बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हमने जो है वाइट लाइट हमारे पास आई हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइक की हैं, वाइट लाइट रेडिएशंस आई हैं. तो ये सारी रेडिएशंस को क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेप्ट जो है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग रेड कलर. दैट इज वाई ये हमें रेड कलर की दिख रही है. ये सभी कलर के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है. विवग्योर में सिर्फ रेड कलर को जो है, बाकी सब कुछ ने एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ तक सिर्फ रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. इट मीन्स दैट इज वाई वी आर एबल टू सी हिम रेड. तो सिमिलरली फॉर ब्लू, सारे कलर्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ब्लू कलर को क्या है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. अब इसी तरह करते करते अगर हम लेट अस कंसीडर वी हैव दिस अ ब्लैक बॉडी. बेसिकली ब्लैक बॉडी क्या हुई, जैसे हमने ये रेड बॉडी की बात की कि रेड था, ब्लू है, तो अगर हमारे पास कोई ब्लैक कलर की बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ब्लैक कलर की बॉडी है, ओके, ठीक है, सो ये हमारी ब्लैक कलर की बॉडी है, दिस वन, ओके. अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने रेडिएशन जो है हमारी स्ट्राइक की है, हमने रेडिएशन जो है इसके ऊपर इंसिडेंट किए हैं. तो ब्लैक बॉडी मीन्स कि इसने सारी रेडिएशंस को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इसने कुछ भी जो है वो रिफ्लेक्ट हमें नहीं किया, कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं दी, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया. जब इसने कुछ रिफ्लेक्ट नहीं वो किया, इसकी वजह से ये बॉडी हमें जो है वो ब्लैक दिख रही है. ओके, मीन्स नो लाइट reflected from here, that is why it is seems to be black. और similarly for the another case, अगर हमारे पास कोई white body है और उसके ऊपर हम रेडिएशंस को स्ट्राइक कर रहे हैं, ये रेडिएशन स्ट्राइक हो रही है उसके ऊपर,
तो ये क्या करेगा, ये सारी रेडिएशंस को जो है वापस रिफ्लेक्ट करेगा, सभी रेडिएशंस को। तो सभी रेडिएशंस जो है हमारी आई में वापस आ रहे हैं, तो सारे अगर विवक्यो कलर वापस मिक्स होके हमारे आई की तरफ आ रहे हैं, तो हमें वो बॉडी कैसे दिखेगी, यस, हम उसको एज अ वाइट बॉडी कंसिडर करेंगे। सो दिस इज द इफ दिस इज व्हाट द ब्लैक बॉडी। अदरवाइज जो ये ब्लैक बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसी आइडियल बॉडी कोई नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है कि जो सारे ही कलर्स को ऐसे एब्जॉर्व करे, ठीक है। बट ये दिस आइडियल बॉडी इज नेसेसरी टू discover the particle nature of the, or to prove the particle nature of the wave. So let's now some start with this experiment that is related to the black body. So इस केस में क्या था, what is an ideal body? It is a perfect absorber and perfect emitter of radiation. When such a body is heated, it becomes red hot. तो जैसे ही हम इस बॉडी को हीट करते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, हम कह रहे हैं कि कोई कलर जो है वो इमिट नहीं करती, ब्लैक ही दिखेगी, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट दिस ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी को, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक वही टेम्परेचर आएगा जिसपे ये हमें रेड हॉट दिखेगी, ठीक है। एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, जो इसका कलर है वो रेड से येलो हो सकता है, और ब्लू होगा, वाइट होगा, ठीक है। मीन्स ये सारे ही इस रेंज में से क्रॉस करेगी। तो this implies that the wavelength of radiation emitted by the black body decreases with increase in temperature. जैसे जैसे हम जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ब्लैक बॉडी का, तो इसकी इंटेंसिटी तो बढ़ रही थी, इंटेंसिटी स्टार्टिंग में बढ़ी है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। कैसे कैसे पता चला, देखिए, जब आपका टेम्परेचर T1 था, मीन्स T1 T2 जो है वो T1 से बड़ा है। जब आपका स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 है, इस केस में बच्चे आपकी पीक जो है यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है आपकी पीक, यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी इस वेवलेंथ पे वो दिखा रहा है। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, दैट इज T2, तो आपकी पीक जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो यहाँ से यहाँ पे आपकी जो है पीक जो है वो शिफ्ट हो गई है। इट मीन्स व्हाट, दैट it wavelength is decreasing with increase in temperature। तो मीन्स ये वाला रीजन फिर किस में आ जाएगा, ये विजिबल रीजन में आ जाएगा। इस तरफ क्या होगा आपका IR, और इस तरफ आपका होगा UV। दिस इज द स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू योर ब्लैक बॉडी। सो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक टाइम पे ऐसा आया कि लैम्डा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके देखिए, यहाँ पे इंटेंसिटी जो है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे बिल्कुल कम थी, इंक्रीज हुई टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, फिर से वो क्या होगी, डिक्रीज होगी इंटेंसिटी। टॉकिंग अबाउट ओनली इंटेंसिटी। जबकि ये हमें लगा था कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन नहीं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी अटेन करने के बाद इट हैज स्टार्टेड अगेन डिक्रीजिंग। और इस केस में भी यही है, कब आपको हर जगह आएगा, इफ वी आर टेकिंग हेयर अनदर T3 टेम्परेचर, तो आपका यहाँ पे फिर पीक थोड़ा इधर होके फिर से यही आएगा। अब पीक हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो पीक जो है हमारी इधर को शिफ्ट होती जाएगी, जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डिक्रीजिंग। ओके, दिस इज योर ब्लैक बॉडी। ये एक ब्लैक बॉडी है, इसमें हमने जब रेडिएशंस को इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, तो रेडिएशंस देखिए अंदर ही आपस में स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। सो व्हेन मैटर इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन। तो जैसे ही हमने ब्लैक बॉडी को हीट करना स्टार्ट किया, तो इसने रेडिएशंस जो है वो एमिट की, और हमें ये रेड हॉट दिखा, ठीक है। A black body is a cavity in a material that only emits thermal। Thermal means ये रेडिएशन उसी कंडीशन में रेडिएट करेगा जब इसको हम हीट अप करेंगे, अदरवाइज नहीं। इनकमिंग रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इन द कैविटी। सो अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज theoretically interesting because the radiation properties of the black body are independent of the particular material। अब ये ब्लैक बॉडी जो है, कोई भी मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई मेटल है या पर्टिकुलर कोई चीज़ है जिसके ऊपर ये हमारी स्टडी हुई थी। मैटर के ऊपर बिल्कुल ये चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही थी। कोई भी मैटर हो, कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पे जब हम उसको हीट करेंगे
ठीक है, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा, पहले वो रेड हॉट होगा, फिर वो और कलर चेंज करेगा, जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाएंगे उसकी जो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती जाएगी. सो अ फिजिक्स कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एट फिक्स्ड टेम्परेचर. सो इसलिए उन्होंने फिक्स टेम्परेचर पे जो है अलग अलग टेम्परेचर्स को इंक्रीज करके वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी के जो है ग्राफ प्लॉट किए और उनको स्टडी किया. Next is very important, the photoelectric effect. Next is photoelectric effect. Now, अब black body radiation से we have डिस्कस दैट वेव हैज़ अ पार्टिकल नेचर. अब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया. अब ये इफेक्ट तभी पॉसिबल था अगर वेव का जो था पार्टिकल नेचर हो. अगर वेव का पार्टिकल नेचर है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है रिलेटेड टू द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. सो न्यूटन जो थे उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले कह दिया था इन आई थिंक इन 80s और 16s, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर. लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट का तो वेव नेचर है जी, पार्टिकल नेचर नहीं है. तो बात वो वही होगी. न्यूटन्स ने जो थी बच्चे कॉर्पस करके आपने सुना होगा, जो उनको उन्होंने कहा था ना मेड ऑफ पार्टिकल, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो उन्होंने पार्टिकल्स को कहा था कॉर्पस्कस पार्टिकल्स. ओके, कॉर्पस्कस पार्टिकल्स. तो ये बाद में ये थोड़ी तो इतनी नहीं चली, बट हाँ नियर इन अराउंड 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जिसने कि प्रूव किया कि यस दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे हैड टेकन अ मेटल सरफेस. अब आपको पता है अगर हमारे पास ये कोई मेटल का सरफेस है, अगेन आई एम रिपीटिंग मेटल सरफेस, तो आपको पता है मेटल में हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स लो वेवलेंथ. सो अल्टीमेटली इनकी रेडिएशंस की क्या एनर्जी हुई, हाई एनर्जी. कैसे पता चला, E इज इक्वल टू एच न्यू. आई सेड वेवलेंथ, रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी. तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी. और मैंने एक चीज़ और कही, दैट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी. सो कम कब होगी, हमें पता ही है किसके इक्वल है, सी बाय लेमडा. सो इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा. सो अगर वेवलेंथ कम है सो अल्टीमेटली जो हमारी रेडिएशंस है वो हाई एनर्जी की हैं. सो मीन्स हम हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस है उनको मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो शायद यहाँ से इजेक्ट हो जाएं और बाहर निकल आए मेटल सरफेस से. ओके, सो व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी इंसिडेंट्स on metal surface and electrons ejected out, this is your photoelectric effect. तो ये आपका देखिए पूरा सेटअप है, ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे लाइट को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये एक डिटेक्टर है. ठीक है, डिटेक्टर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी. ओके, so this is your photoelectric effect. Now what are the observation that are related to this photoelectric effect experiment. इलेक्ट्रॉन्स आर इमीडिएटली, जैसे ही लाइट को स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही जो है एमिट हो जाएंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कि उनका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, डज नॉट डिपेंड. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टारगेट मेटल. मीन्स जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी मेटल हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज. सो बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है
It is the minimum frequency of the light which causes electrons to be emitted from the metal surface. Means ये minimum amount of frequency है जो हमें चाहिए ही चाहिए to eject the electron. अगर इससे कम frequency की light हम यहाँ पे strike कर रहे हैं, then electron is not able to ejected out. So we can say that no electron are ejected if the frequency of light less than or equal to threshold frequency. तो आपकी जो frequency of light है वो threshold frequency से ज़्यादा होगी, only then the electron will be ejected out. Then fourth observation of this photoelectric effect is number of electrons emitted of the photoelectron current depend on the intensity of the light. कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड आउट होंगे, इट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. सो नाउ टाइम टू solve some numerical problems from your NCERT book. Examples I have taken here. So this first question, calculate energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz. You have to बच्चे calculate the energy. So यहाँ पे firstly जो चीज़ें हमें given है, we have to underline this. We are provided with the energy. हमें energy given है. So we are provided with here energy that is 5 into 10 raised to power 14 hertz. And we have to find out the energy. Frequency और energy के बीच में क्या relation है सोचिए. So it is E is equal to h nu. अभी हमने पढ़ा है in Planck's quantum theory. So energy is equal to h nu, where h is what? H is your Planck's constant and its value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules seconds. So frequency is this, that is given. Now when we put the values here and solve this mathematical problem, we will get this as the energy of 1 mole of photon. अब ये तो energy total निकाली, energy of 1 mole of photon. So 1 mole के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10 raised to power 23 पर मोल से. तो ये you will get here this energy of 1 mole. Okay, this is your Avogadro's number. Then question number next, problem 2.7. A 100 baht bulb emits monochromatic light of wavelength. Okay, now understand the question. Baht bulb, okay, power दी हुई है, power of the bulb, and wavelength is given, lambda is given. We have to calculate the number of photons. हमें number of photons find out करने हैं emitted per second by the bulb. So power is 100 watt. So watt is written as joule per second. Now energy of one photon will be is equal to h nu, and nu can be written as c by lambda. Now we will put all the values here. H हमें पता है constant है, C भी constant है, lambda is given here, so we have put all the values. So we are provided this energy of the photons. Now number of photons emitted. So वो कैसे निकलेंगे, कितने photons जो है emit हुए हैं. So इतनी power जो है emit हुई है उसको हम divide कर देंगे जो इसकी खुद की energy है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने photons जो हैं emit हुए हैं. ठीक है, जो टोटल पावर जो है बल्ब की एमिट हो रही है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास है, सो उसको डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. दिस इज 9th क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. द क्वेश्चन इज अ फोटोन ऑफ wavelength is given, that is lambda is given here, that is 4 into 10 raised to power minus 7 meter, strikes on metal surface, and the work function of the metal being is 2.13 electron volt. Calculate. So I have not discussed it, but yes, we can solve two parts of this right now. The first is we have to find out the energy of photon. So E we have to find out. We are provided with the lambda. So हमें अब lambda और E के बीच का relation याद करना है. That is होता क्या है, E is equal to h nu and nu is equal to C by lambda. So this is equal to
E is equal to hc by lambda. We will put the values of Planck's constant, speed of light, and wavelength is given here. Okay, these are the values. So when we put all these values, we will get this energy, that is 4.9695 into 10 raised to power minus 19 joule. So this is the energy. Hence the energy of the photon is 4.97 into 10 raised to power minus 19 joule. So in second part they have asked to find out the kinetic energy of the emission. So अभी तक हमने इसके बारे में अदरवाइज रिलेशन नहीं पढ़ा है. So I think it is not good idea to be discussed with the velocity of the photoelectron. कुछ नहीं है बच्चे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं जो हमने थियोरेटिकल अभी तक पढ़ा है उनको आगे एनहांस किया है. सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ई माइनस दिस, ये जो आपको डब्ल्यू एट इज द वर्क फंक्शन. ओके, सो वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. ई जो है इट इज 4.9695 इंटू 10⁻⁻, -19 जूल. तो ये हमने एनर्जी ले ली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस, so when we solve it we are getting this. Hence the kinetic energy of the emission is 0.97 electron volt. I will just clear this numerical again to you because we have not studied yet this relation. So I hope, I think you might have problem over here. So I will take this numerical in next lecture again because हमने अभी तक ये topic नहीं पढ़ा था. So don't worry. In this question again we have to find out the velocity of the photoelectron and it can be, हमें पता है kinetic energy is equal to half mv square. Okay, so this is equal to h nu, यहाँ से equal to h nu naught minus आएगा बच्चे यहाँ पे. So it is nu is equal to, ये इसको अंडर रूट वी स्क्वेयर, यहाँ पे बच्चे ये ऐसे हुआ है. ठीक है, हमें v निकालना है तो यहाँ पे रूट को ऐसे ले गए, ये माइनस का साइन है और डिवाइडेड बाय m आ जाएगा. यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया मैथमेटिकली. एंड वेयर इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन इज एच नॉट माइनस एच नॉट, एच न्यू सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन इन जूल एंड m इज द मास ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये तो हमें पता था. So 2 into this is kinetic energy of emission divided by mass of electron. Mass of electron है 9.1 into 10⁻⁻31 kg. So अगर आप इसको यहाँ तक भी लेते हैं 9.1 तक भी, then it is also okay. So in this way we have calculated the velocity of the photoelectron. ये वाला जो पोर्शन है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, नॉट डिफिकल्ट अदरवाइज कि आपने ये रिलेशन पढ़ा नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग. सो कोई बात नहीं. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. अगेन आई एम रिपीटिंग एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू ई एनर्जी माइनस W इज वर्क फंक्शन इनटू इलेक्ट्रॉन बोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ अलग से वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द काइनेटिक एनर्जी एमिशन. उसके बाद हमने बच्चे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. अब हमें वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था. सो उसके लिए वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, ये रिलेशन को यूज़ किया. ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो दो बोथ आर इक्वल. सो यहाँ से हमने वेलोसिटी जो है निकाल ली. वेलोसिटी इज इक्वल टू होल द रूट 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाय m. Okay, where m is kinetic energy of emission and it is in joule, and m is the mass of electron, that is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. So when we plug in the values in this relation, we are able to find out the velocity of the photoelectron, and that is 5.84 into 10⁻5 meter per second. So this is your today's, all about your today's lecture. These are the homework questions for you. This one we have discussed. You are left with only two problems, that is 2.9 and 2.10. So please solve this question, and if you find any difficulty you can ask me. Thank you students. Happy learning.